नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और ये शो हम आपके लिए यहाँ पर APMC से मसाला मार्केट से लेकर आए हैं। पहले आपको याद दिला दें कि पिछले 6 महीने 12 महीने में मसालों में यहाँ पर लगातार तेज़ी बनते हुए नजर आई है। जीरे में तेज़ी है, धनिये में हमने करीबन 80-90% की बढ़त पिछले 1 साल में यहाँ पर आते हुए देखी है और लाल मिर्ची में तो करीबन आग ही लगी हुई है। यही हाल यहाँ पर बाकी चीज़ों का भी है। मखाने के प्राइसेस में ज़ोरदार बढ़त देखने को मिली है। कुछ चिंताएँ ऑफकोर्स एक्सपोर्ट्स को लेकर यहाँ पर ज़रूर बनती हुई नजर आई हैं, लेकिन मार्केट को ऐसा लगता है कि आगे जाकर यहाँ पर और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है और वो इसलिए है क्योंकि आने वाला साल जो है वो अल नीनियो का है, यानी कि बारिश कम रह सकती है। फर्टिलाइज़र के भाव यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और मार्केट्स को लगता है कि एग्रीकल्चर इन्फ्लेशन यहाँ पर लगातार बनती रह सकती है। तो इसी पर एक चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर पूरा पैनल मौजूद है कि किस तरह से आगे जाकर मसालों के प्राइसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। सबसे पहले अशोक जी से बात करेंगे। अशोक दत्तानी जी यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं APMC के। अशोक जी, ओवरऑल पहले तो ये बताइए कि मार्केट का हाल कैसा है? मार्केट का हाल अब आज की तारीख में तो देखो तो जो पहले हमारे पास जो ट्रेड का वॉल्यूम था, दैट वॉल्यूम हैज़ गॉन डाउन बाय ऑलमोस्ट 50%, आधा से भी शायद ज़्यादा कम हो गया है। एंड देयर आर क्वाइट अ फ्यू रीजंस, क्योंकि वर्ल्ड इटसेल्फ हैज़ बिकम सो स्मॉल, सो पीपल हैज़ बेसिकली स्टार्टेड बाइंग directly from the farmers or from the markets, and somewhat because of the government policies also, they want to eradicate all the middlemen. Government also wants, so they have giving licenses to trade to bigger companies, corporates, and they can buy from the farmers and then sell in the Bombay market, while they are still tied down our hands. We still need to get the goods here and then sell here, उसके पूरा खर्चा चढ़ाते हैं, तो naturally we will not be able to compete with them, but our efforts are still on to convince the government कि भाई आप उनको भले बुलाओ मगर हमारे हाथ छोड़ दो तो हम भी कुछ करें काम। अशोक जी, मसाला जहाँ तक बात है, स्पाइसेस की बात है, इंडिया सबसे बड़ा यहाँ पर प्रोड्यूसर है, बहुत लंबे बड़े हमारे एक्सपोर्ट्स भी हैं, लेकिन चिंताएं भी उतनी बढ़ती हुई नजर आई हैं। Yeah, India is a basically very big producer of all the spices and especially chilies, if you will say, because that is my forte. So we are the biggest producers of chilies in the world, and we are the biggest exporters also in the world. As you correctly said, some problems have come up in recent times, but that is more to do with जो farmers are not very educated properly, so there is some pesticide residuals and all this chemicals, this is less and all. So those problems are coming up, and standards of Europe and US also, they have become more stricter. But then overall, otherwise, we are pretty good. And then all this disturbances of war and all this comes along. So, the shipments and all this, they just pause for a time. And that is how, the trade is affected as of now. But then talking about chilies, then I think chilies we are doing fine. We are the biggest. But unfortunately, what has happened is this year, the chili crop is almost you can say 40 to 50%. Andhra Pradesh is the biggest producer of chili. Karnataka is a big producer. Telangana, first Andhra Pradesh and Telangana were together. So that crop was huge. Now the crop is divided between Telangana and Andhra. Karnataka crop also was very big, and MP crop. Now talking about MP, since last 3-4 years or maybe 5 years, the crop of MP has gone down so much. At its peak, MP used to produce 60 lakh bags. And now it has just come down to 6 lakh bags. So we come down to 10% as far as MP is concerned. अगर पिछले 6 महीने या 12 महीने की बात की जाए तो कितने भाव यहाँ पर बढ़े हैं और किस तरह की फसल है, कैसी आवक है? So this year फसल तो जो है वो तो 50% ही है, and last year से price भी accordingly proportionately you can say it is they are almost double. Last year जो crop stock था उससे भी ये साल stock जो है वो is less than 50% also. And this year the prices have gone up. तो फार्मर्स जो है देयर टू काइंड्स, तो वन तो उसको प्राइस अच्छा मिल रहा है तो उन्होंने इनकैश कर लिया, तो उन्होंने स्टॉक नहीं डाला, एंड दूसरा क्रॉप कम आया तो उसको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ गई तो उन लोग ने तो भी बेच दिया. सो दिस वाज द मेन रीजंस. फार्मर्स का इतना स्टॉक होल्ड में नहीं गया. ट्रेडर्स लोगों का गया है, जो एक्चुअल मसाले वाले फैक्ट्रीज है बड़े जो ब्रांडेड वाले हैं, आई विल नॉट नेम देम, बट उनका वो भी स्टॉक उन्होंने भी काफ़ी उनका स्टॉक है. बट आई डाउट वेरी मच कि ये जो अभी एग्जिस्टिंग स्टॉक है दैट विल लास्ट एंटायर पीरियड फॉर नया क्रॉप आने तक का. सो अभी प्राइस ऑलमोस्ट लास्ट ईयर से तो दुगने हो गए हैं,
but still I think prices can rise. अभी यहाँ से मैं देख रहा हूँ अगस्त सितंबर तक तो शायद it will go in a phase way, not very. But after that, you know, if this stock is consumed as I am afraid, then after that it will just gallop. यानी कि सिर्फ मौसम में ही गर्मी नहीं है, गर्मी यहाँ पर मसालों में भी ज़ोरदार है। लाल मिर्च के भाव जहाँ तक उसकी बात है यहाँ से 2 गुने हो चुके हैं। लेकिन सिर्फ लाल मिर्च की बात ही नहीं है, क्योंकि किरीट भाई जहाँ तक धनिया की बात है यहाँ पर भी भाव डबल हुए हैं पिछले 1 साल में। फसल कम है, 3 महीने में 13% बढ़े हैं, 90% तक की तेज़ी पिछले 12 महीने में। कैसी फसल, कैसी आवक और कैसी स्टोरेज आप देखते हैं? नमस्ते CNBC के दर्शकों को। ऐसा है कि लास्ट ईयर क्रॉप में कैरी फॉरवर्ड 70 लाख था और नेक्स्ट ईयर उसके बाद में 25-26 में जो क्रॉप आया वो 110 था। यानी ओवरऑल लोगों के माइंड में ये था कि इस साल 1 करोड़ 70 लाख बैग्स है, तो लोगों के माइंड में तेज़ी नहीं थी। तो क्या हुआ कि सब लोग ने माल निकालना चालू कर दिया। उसमें ये हुआ कि जो लास्ट ईयर का जो क्रॉप था उसमें ग्रीन माल ज़्यादा है। अपने इंडिया के अंदर 75% ईगल और स्कूटर का सेल ज़्यादा है और वो चीज़ आई नहीं। तो हुआ ये कि जो स्टॉक था कैरी फॉरवर्ड वो सब निकल गया 4-6 महीने में, सबको तेज़ी नहीं लगती थी। तो अप्रैल से लेके अगस्त सितंबर तक जो पुराना माल था वो पूरा निकल गया। भाई बाकी बचा वो स्कूटर और स्कूटर का अप का था। तो वो माल जिसको ईगल और बादामी चाहिए वो माल मिल नहीं रहा था। तो उसके वजह से आफ्टर दिवाली के बाद वो बढ़ना चालू हुआ। और समझ लो आप जो बताया, जो वो आपने अप्रैल के बाद का बताया बढ़ा, लेकिन अगले साल का अप्रैल से लेके इस अप्रैल तक डबल हो गए भाव। जो 70 रुपीज़ पर केजी ईगल लूज मंडियों में बिकता था वो आज की तारीख में 135 है, यानी वो डबल हो गया। उसका कारण ये है कि भाई ईगल और बादामी माल का शॉर्टेज था। और लास्ट ईयर में क्या उल्टा हुआ था कि लास्ट ईयर में कलर वाला माल काफ़ी था, तो जो इधर लोकल में जो क्वालिटी जो मेंटेन करते हैं, मतलब अच्छा माल लेते हैं 350 वाला, इससे लास्ट ईयर 250 में बिका, 100 रुपीज़ डाउन बिका। ये सब ऐसा उल्टा सुल्टा हुआ है। और इस साल क्या है कि ये जो चीज़ थी वो NCDX वालों ने पकड़ ली थी और उनको जैसे जीरा में लास्ट 2 साल पहले किया खेला, वो खेला इस साल इन लोग ने धनिया में किया है। तो उन्होंने एडवर्टाइज चालू कर दिया था जनवरी से। जैसे हमारे जैसे जो हम लोग हैं, अशोक भाई जैसे जो भी धनिया के फील्ड में थे, उनको सबको फ़ोन लगाए भाई 200 रुपया होगा, सब 200 रुपया होगा। जो बड़े व्यापारी है उनको बताया भाई तेज़ी लगती है, आप रोको उसके अंदर पैसा। ये जो एडवर्टाइज जो था वो एडवर्टाइज बहुत बड़ा काम कर गया। और उसके बाद जो आपको बोला ना कि ईगल बादामी इस साल भी प्रॉब्लम था, तो उसके हिसाब से मार्केट जो है वो जंप मारा है। और आगे मैं बोलता हूँ कि 120 के नीचे धनिया जाएगा नहीं, और अप टू सितंबर एंड कोई मंदी आने का चांस नहीं है। 2-3 रुपये घटे वो बात अलग है, लेकिन कोई मंदी का होने अक्टूबर में क्या होगा अभी मैं मेरा बोल रहा हूँ। अक्टूबर में जो लोकल क्रॉप है, जो भाव के हिसाब से, यानी महाराष्ट्र के अंदर लातूर, बारसी, नासिक, जलगांव, यहाँ के किसान लोग देखेंगे कि भाव ऊंचा है तो सोइंग हो सकती है ज़्यादा। ऐसे कर्नाटक, हुबली, धारवाड़, अदर्स प्लेस जो है वहाँ भी सोइंग बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो वो फिर और उसके बाद में आंध्र प्रदेश के अंदर जो अपना जो 2-3 अपना ये गुंडकल है और 2 सेंटर है जो बड़े बड़े हैं, जो हमेशा उसमें वो क्रॉप बढ़ सकती है। तो यहाँ तक उसमें ब्रेक लगने का चांस है। और दूसरा जो फॉरेन का माल आ रहा है, फॉरेन का माल में शॉर्टेज था, माल शॉर्टेज था, इसलिए यहाँ पे 65 में जो बिक रहा था वो आज की तारीख में 135 है। इम्पोर्टेड कोरिएंडर इतना बढ़ गया क्या शॉर्टेज। और वहाँ तो लोगों ने यहाँ पर पैसा कमाया है, धनिया वालों ने पैसा कमाया है। जरूर पैसा कमाया है। क्या वो पैसा जरूर सबको मिला है, यानी नीचे से आदमी लेके मंडी वाले से लेके व्यापारी तक सबको पैसा मिला है। और अच्छा कमीशन, यहाँ पे कमीशन माल जब बिकने को ज़्यादा आता है तो कमीशन वालों को माल बिका है। तो धनिया वालों के लिए पैसा बहुत बना, मिर्ची वालों के लिए पैसा बना, क्योंकि भावों में यहाँ पर हमने डबल होता हुआ देखा है। एक और चीज़ धनंजय जी हमने बढ़ते हुए देखी है वो है जीरा। यहाँ पर भी प्राइसेस काफ़ी बड़े हैं। यहाँ पर पहले तो फंडामेंटल्स बताइए, क्योंकि यहाँ हमने फसल कम देखी है, लाल मिर्च और धनिया दोनों में। जीरा में फसल, आवक, कमीशन, खरीदारी, स्टॉक सब कैसा है? जीरा कमोडिटी की सबसे फेवरेट आइटम है। हीरा है। जीरा हमेशा हीरा था, है और रहेगा। जीरे के दाम कम हुए, जीरे के गुण कम नहीं हुए, इसलिए जीरा हीरा रहेगा ही हमेशा।
और जीरे की बात और दो शब्दों में न बोलूँ जीरे के ऊपर तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। जीरा को अच्छा नहीं लगेगा। जीरे को अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसे सलाद में खीरा, मिठाई में शीरा, उस तरह रसोई में जीरा ये हो तो ही उसकी मज़ा है। वरना क्या जीरा तो क्या है, एक ऐसी कमोडिटी है कि वो भारत की एक पहचान है। मसाला उसके वजह से ही, मसालों से वजह से ही भारत की एक पहचान है। तो जीरे को कुछ हम कमज़ोर नहीं बोल सकते हमारे हिसाब से। अब फसल पे बात कर लेते हैं, किस तरह की फसल बनते हुए नजर आ रही है, और माना ये जा रहा है कि अब एल निनो वाला साल है, बारिश कम होगी, तो आपको लगता है आगे जाकर ये तेज़ी मौसम की वजह से भी जारी रहेगी? फंडामेंटली देखने जाए तो जीरा इस साल घटना नहीं चाहिए। जीरे के एक भी फैक्टर घटने में नहीं है। जीरे में लास्ट ईयर से 20% क्रॉप कम है। गर्मी होनी चाहिए तब ठंडी थी, ठंडी होनी चाहिए तब गर्मी थी, और बारिश का अनियमितता, वो सारे फैक्टर, और कैरी फॉरवर्ड इस साल 25 लाख बोरी थी, तो सारे फैक्टर जीरे के तेज़ी की तरफ भी थे। लेकिन वॉर के वजह से और दूसरे हमने वॉर के वजह से भी जीरे का फॉल देखा अभी, क्योंकि जीरे की 90 लाख बैग की हमारी खपत है, उसमें 50 लाख हम डोमेस्टिक वाले और 40 लाख एक्सपोर्ट है। तो दो हाथ से ताली बजती है। वैसे ही एक डोमेस्टिक वालों से कुछ नहीं होना है। अगर एक्सपोर्ट अगर उसमें सपोर्ट करता है तो ही जीरा बढ़ता है। तो ये एक्सपोर्ट का कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़ी मार गिरी है। और दूसरा, अभी 3-4 सालों से हमने देखा है कि चाइना इस फील्ड में आ गया है। पहले क्या था, चाइना हमारे से बहुत माल लेके जाता था, लेकिन अभी क्या है कि चाइना की खुद की कंजप्शन इतनी अच्छी है तो उसने भी खुद का क्रॉप उगाना शुरू कर दिया है। तो वो हमें बहुत बड़ा मार गिरा है। तो वो हिसाब से हमारी खपत थोड़ी कमज़ोर हो गई है, वो वजह से जीरा अभी डाउन है। ठीक है, तो अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर बनते हुए नजर आई है, लेकिन ऊपरी स्तरों से कुछ मुनाफा वसूली हमने जीरे में बनते हुए देखी है। आगे किस तरह के ट्रेंड्स हैं, ऑफकोर्स इसके ऊपर यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन आशीष राजगौर जी, यहाँ पर हमने अच्छी खासी तेज़ी मखाने पे बैठी है, आप उसके साथ ही बैठे हैं। यहाँ पर बढ़िया बढ़त है पिछले 2-3 साल, जब से वो बजट में अनाउंसमेंट हुआ था मखाना बोर्ड का, उसके बाद वो तेज़ी रुकी ही नहीं है। पहले तो मनीषा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा एपीएमसी मार्केट में आकर हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। अब बात रही मखाने की, तो जैसे ही धनंजय भाई ने जीरे के बारे में बताया, तो मैं भी बताना चाहता हूं कि रोज़ाना खाना भारत का मखाना। और मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया से सबसे ज़्यादा मखाना एक्सपोर्ट हो रहा है। तो एक हिसाब से देखने जाए तो भारत के लिए खुशी की बात यह है कि एक्सपोर्ट बंद हुआ है मखाने में, तो भारत वालों को सबसे सस्ता मखाना ये साल मिल रहा है। और मखाने में ये साल पूरा साल स्टडी रहा है, कोई तेज़ी नहीं आई है इस साल। और फसल कैसी रही है, आवक कैसी है, प्राइसेस में क्या रेंज रही फिर? देखिए, फसल काफ़ी अच्छी है और आने वाले कई सालों में फसल और भी अच्छी होगी। उसका रीज़न ये है कि मोदी जी ने मखाना बोर्ड का गठन किया है। उसकी वजह से फ़ायदा क्या होगा कि किसानों को और जो भी वहाँ के छोटे मोटे व्यापारी हैं उन सभी को सब्सिडी मिलने वाली है। तो वो हिसाब से मखाने का प्रोडक्शन बढ़ेगा। और अगर कंजम्पशन भी बढ़ गया तो भी मखाने में ज़्यादा तेज़ी नहीं आने वाली, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है आगे साल। और ये साल मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था कि 1000 से 1600 के भाव है, तो ये साल 800 से 1400 के भाव हो गए, यानी कि 200 रुपया मंदी आई है। तो मखाना पेट भर के खाना चाहिए लोगों को। ऑल राइट, तो मखाने में ऑफकोर्स कुछ मुनाफा वसूली ज़रूर आई है, और काफ़ी हद तक मसालों में वही हाल है। बाकी कंट्रीज़ यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाने लगी हैं, वॉर के चलते, फ्रेट्स के चलते यहाँ पर एक्सपोर्ट में थोड़ी सी कमी है, जिसका फ़ायदा भी यहाँ पर भारतीय मसालों को देखने को मिला है। लेकिन इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो हमारे पैनल से ये जानेंगे कि आने वाला साल अब यहाँ पर कैसा रह सकता है। अगर आपको ट्रेड करना है, खरीदना है, भाव जानने हैं, तो इस ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आउटलुक अब मसालों में कैसा नज़र आता है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता, और मसालों के बारे में हमने सबसे यहां पर बात करी है। ज़ोरदार तेज़ी पिछले 6 से 12 महीने में यहां पर देखने को मिली है, और काफ़ी सारे इसके रीजंस भी हैं, चाहे वो कम फसल है, स्टॉक की प्रॉब्लम्स हैं, और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में जिस तरह के क्यूज़ हैं, उन सभी का इम्पैक्ट हमने यहाँ पर मसाले में आता हुआ देखा है। लेकिन अब ओवरऑल मसाले का बाज़ार कैसा है और आउटलुक यहाँ पर भावों को लेकर क्या है, इस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन हमारे पैनल में अब यहाँ पर खिमजी भाई जुड़े हैं, जो यहाँ पर ब्रोकर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। आप कैसे देखते हैं ओवरऑल बाजार, बढ़त हुई है, पैसा बना है, क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पे हमेशा आते हैं, इसके लिए ये मार्केट आपके आभारी है। ये मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। ये मार्केट की प्रोग्रेस है। आप यहाँ देखिए, कोई काम करने वाला यहाँ पे हो, स्टाफ हो, कि उसका ओनर हो, सब यहाँ पे इक्वल है। कोई आपको इसका बेच जैसा नहीं लगेगा। ट्रांसपोर्टर, व्यापारी, ब्रोकर्स सब मिलके यहाँ मिलजुल के काम करते हैं, इसीलिए ये मार्केट की प्रोग्रेस है। आप पहले देख लीजिए, यहाँ पे मिर्ची वाला है, नेक्स्ट मिर्ची वाला है, यहाँ पे ड्राई फ्रूट वाला है, नेक्स्ट ड्राई फ्रूट वाला है,
ये जीरा वाला है, आगे बाजू भी जीरा वाला, लेकिन कंपटीशन ऐसा कुछ नहीं है। ये मार्केट की प्रोग्रेस है, इसलिए मार्केट दिन प्रतिदिन हमारी प्रोग्रेस में जा रही है और इस माता जी की हमारे पर मार्केट की ओर असीम कृपा है। वेल एब्सोल्युटली कंपटीशन की बहुत ज़्यादा वो सेंस यहाँ पर नहीं है और काफ़ी मिलजुल के यहाँ पर काम होता है। लेकिन अशोक भाई, जैसे ओवरऑल यहाँ पर सभी लोग एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं सरकार को कि हमारी मार्केट को ये चीज़ों की ज़रूरत है, तो अगर आपको दो चीज़ें चूज़ करनी हो कि स्पाइसेस मार्केट्स को इंडिया में इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम यहाँ की लोकल मार्केट की बात करते हैं, नॉट गोइंग टू फुल इंडिया, ओनली टॉकिंग अबाउट दिस मार्केट, देन यू नो एज आई टोल्ड यू बिफोर कि भाई हमारे जो गवर्नमेंट ने यहाँ APMC में एक्चुअली इम्प्रिजन कर दिया, ऐसा है। आज हमारे पास यहाँ खरीदार कौन रह गए, तो क्या कि लोकल लोग रह गए या वो रह गए कि जिनको उधार पे माल बाहर नहीं मिलता है। सो एक्सपोर्टर्स भी, द वर्ल्ड हैज बिकम सो स्मॉल, द एक्सपोर्टर्स हैव स्टार्टेड बाइंग. In fact, even China, they stopped buying from the exporters. They are buying directly from the farmers. वो लोग ने plant और वो सब producing center में डाल दिया. The world has become so small, and here our hands are tied. So I would request the government कि पहले APMC की ज़रूरत ही नहीं है. The government also knows कि APMC picture में था ही नहीं. We just wanted to supported the government to decongest South Bombay. We came here, we needed loan, तो loan NABARD हमको direct नहीं दे सकती थी. We needed some government agency जिसके थ्रू ये लोन होती. That is how APMC came into the picture. So basically APMC was meant to only regulate the shifting of the market and not to regulate the market. अब तो हमारे बाप बन गए यहाँ के. They started regulating, मतलब इतना interference और इतना सब hindrance create कर रहे हैं कि they are the major block who is मतलब हमारे problems है. I request कि there is no need of APMC because first of all यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ कोई किसान का माल आता ही नहीं है. No farmers, कोई फार्मर का माल ही नहीं आता. It's business to business and from business to consumers. तो ये APMC मार्केट एग्रीकल्चर मार्केट कमोडिटी एग्रीकल्चर है, बट कोई फार्मर्स तो आते नहीं है. सो आई थिंक वी शुड बी आउट ऑफ दिस APMC चिंगुल फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन सेकेंडली एज आई टोल्ड यू कि ये जो अगर ये निकल जाते हैं तो अपने आप हमारे हाथ खुल जाते हैं. We will be able to definitely compete with the bigger corporates because our expertise यहाँ है. We are the actually main link producing center और यहाँ के consumers के. So this is one thing very strongly I recommend कि भाई ये करना चाहिए. Otherwise बाकी तो मोदी सरकार आने से और even आगे मनमोहन सिंह they were quite forward looking कि भाई बने उतना ease of business होए, and we are seeing that ease of business हो रहा है. But because of APMC, अभी I'll tell you example कि सब जगह पे आप कहीं भी जाओ 5-5 साल का लाइसेंस एक साथ में मिलता है. यहाँ कंपलसरी वी आर फोर्स टू टेक लाइसेंस एवरी ईयर, रिन्यू एवरी ईयर, एंड देन एवरी ईयर लाइसेंस देने के लिए भी यू नो हाउ दिस ऑल द लोअर पीपल वर्क. तो वो सब भ्रष्टाचारी है, वो दिस ऑल अननेसेसरली है. ये आई थिंक गेट रिड ऑफ APMC, देन यू सी वॉल्यूम्स विल डबल. इमीडिएटली आपको वॉल्यूम डबल मिल जाएगा. सो आई एम ग्लैड वो सारी रिप्रेजेंटेशंस यहाँ पर हो रही हैं और एक ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन भी यहाँ पर है. ये तो मार्केट की बात हुई, लेकिन अगर लाल मिर्च की बात करें जिसमें आपका एक्सपर्टीज़ है, तो यहाँ से आपको लगता है जिस तरह से प्राइसेस में ग्रोथ आई है वो आगे भी बढ़ेगी? हाँ, यू सी वी आर अभी लुकिंग एट वेयर वी आर राइट नाउ इन द सीजन ऑफ साइकिल सीजन के, तो वी आर नाउ ऑलमोस्ट एट द हाफ वे स्टेज. तो अभी जो क्रॉप आना था, हार्वेस्टिंग होना था, वो सब हो गया. 95% ऑफ द हार्वेस्टिंग हो गया है, माल मार्केट में आ गया है, मगर माल ही पिछले साल से 50% हुआ है. नाउ यू लुक एट द प्राइस, यू नो वेयर इट स्टार्टेड फ्रॉम, वेयर इट इज़ टुडे, देन आपको एग्जैक्ट विल बी एबल टू एंटिसिपेट कि लास्ट ईयर यही टाइम पे अंदर में एक जनरल कॉमन, बिकॉज देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ चिलीज, बट अब एक कॉमन आप ले रहे हो कि भाई तेजा वेराइटी है, तो लास्ट टाइम ये था तेजा वेराइटी का भाव जो था वो 110 रुपया से लेके 125 रुपया किलो का भाव था. जो अभी ये नई सीज़न स्टार्ट हुई, so that in the month of January, February, the prices were 180 to 185 or 175 to 185 started. Today the price is around 200 to of that quality 200 to 210. So it is gone up, but it is not gone up that substantially कि जो 125 का 175 हो गया, वो अभी 175 का 200 हुआ है. So just और सीज़न तो अब ये पूरी हो गई, so अभी सप्लाई तो होना नहीं है, तो जो स्टॉक है, तो जो स्टॉक भी पिछले साल से आधा ही है. So going forward, looking at the demand and supply position, I think it should
continue strongly, and because new chili is not going to come before next January or December. So I would not like to कितना बढ़ेगा नहीं, but you can guess. You can guess कि भाई there is only one way the market can go. It cannot go down. तो तेजी यहाँ पर आगे बरकरार रहेगी। नई फसल जनवरी में आएगी, उससे पहले नई खपत नहीं है, तो क्लियरली भावों में तेजी है। अक्टूबर तक तो तेजी है ही। हाँ, धनिये में आप अक्टूबर तक आप समझिए, उसमें अपना एनसीडेक्स वाले कितना खेल करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है, कि उन लोग ने फोरकास्ट किया है 200 सवा 200 का। आपका फोरकास्ट क्या है? मैं आपको बोल रहा हूँ, तो क्या है कि वो हो भी सकता है, जैसे जीरे में किया था, भले फिर बाद में व्यापारी पीटे, लेकिन एक बार तो किया, तो इन लोग का है टारगेट, लेकिन मेरा मानना है कि और 10 से 15 रुपया आगे जाके बढ़ सकता है। Manish, I would like to draw your attention to previously, because mirchi chilies was also very hugely traded on NCDX. This I'm talking about initially when this forward trade started, and then how all garbad kuch ho gaya. You were master of it at that time. You know what had happened, and then ultimately they had to stop this thing. तो ये कोई भी कमोडिटी है ना, तो ये जनरली हाँ ये स्पेकुलेटिव कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। जैसे किरीट भाई ने बताया ऐसा कि वो एक हवा ही बना देते हैं, एंड जो छोटे आदमी हैं या वो जो है ना, वो बेचारे फंस जाते हैं। जी हाँ, हमने लाल मिर्च में वो होता हुआ देखा, हमने काली मिर्च में वो होता हुआ देखा, तो क्लियरली वहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। लेकिन जहाँ तक जीरा की बात है, आप कह रहे हो कि जितनी तेज़ी यहाँ पर लाल मिर्च और धनिया में है, शायद जीरा में आती हुई नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ से अगर आने वाले 6 से 8 महीने देखें तो जीरा की चाल कैसी रह सकती है? मुझे लगता है कि इस रेट से जीरे में कुछ जाना नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि लास्ट 5 साल का ये बॉटम बना है, और इस ज़मीन के भाव बढ़े, किसान के सब इलेक्ट्रिसिटी के भाव बढ़े, पानी के बिल बढ़े, सब बढ़ गया, लेकिन जीरा नहीं बढ़ा। तो इस रेट से जीरा किसी को बेचना नहीं है, किसानों का मूड ही नहीं ये भाव में बेचने का। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी आमदनी कम होगी या अटकेगी। और जैसे कि हमने देखा, किरीट भाई ने बोला कि धनिया का रेट इस साल डबल है, 60 का 120, 140, 50 हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों का मूड दिवाली के बाद चेंज होगा, जीरे की बजाय धनिया की बिजाई करेंगे, तो वो भी एक फैक्टर काम करेगा कि जीरे का बिजाई थोड़ा कम होगा। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रेट से जाने में कुछ भी नहीं, सिर्फ इनकमिंग है, आउटगोइंग कुछ भी नहीं, जीरे में सिर्फ आना ही आना है इस रेट से जीरा लिया तो। और जो बारिश को लेकर चिंता है कि एल निनो का साल है, शायद बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होगी जीरा ग्रोइंग एरियाज़ में भी, आपको लगता है वो एक फैक्टर रह सकता है? नहीं, एक्चुअली जीरा है ना बारिश के पानी से नहीं होता है, वो क्या है कि कुएं के पानी से होता है। तो उसको और जीरे को ऐसा भी पानी कम लगता है, तो जीरे को कोई इफेक्ट नहीं गिरने वाला इससे। मखाने की फसल बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है, तो उसका फ़ायदा है। लेकिन अगर कल परसों में एक्सपोर्ट शुरू हो गया हफ्ते 10 दिन में, तो कितना प्राइस राइज यहाँ से देखने को मिल सकता है? और आप तो किशमिश भी बहुत क्लोजली देखते हैं, वहाँ पर किस तरह के फंडामेंटल्स हैं, क्योंकि गल्फ़ में जिस तरह की कंसर्न्स चल रही हैं उसका क्या इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ा है? जी हाँ, मखाने में अभी एंड सीज़न है, जुलाई और अगस्त महीने में नया मखाना शुरू होगा, तो मखाना ऑलरेडी स्टॉक व्यापारियों के पास बहुत सारा पड़ा हुआ है। अगर एक्सपोर्ट शुरू भी होता है तो यहाँ से मार्केट बढ़ने का चांस नहीं लग रहा है, मार्केट स्टडी हो जाएगा यहाँ से। और नए साल की फसल के बारे में सोचे तो फसल तो अच्छी आने वाली है, तो मुझे नहीं लगता है मंदी या तेज़ी बहुत ज़्यादा नहीं आने वाली है, ये साल भी स्टडी रहेंगे भाव। और किशमिश का कहे तो लास्ट फरवरी में बर्फ़ के ओले गिरे थे महाराष्ट्र में, पंढरपुर, तासगांव, सांगली साइड में, सब में। तो वहाँ पे क्या है कि जो द्राक्ष थी वो झाड़ पर ही थे, तो उसको थोड़ा इफेक्ट हुआ है। तो अच्छे मालों में बढ़ेंगे, जिसका आज का भाव सपोज 450 है, तो 10% बढ़ने की और उम्मीद है, 500 तक हो जाएंगे इंडियन किशमिश। तो किशमिश के भाव चढ़ेंगे, मिर्ची के भाव चढ़ेंगे, धनिया के चढ़ेंगे, जीरा खरीदने जैसा है। और जहाँ तक मखाने की बात है, अच्छे से खाइए मखाने, ये यहाँ से ऑफकोर्स आशीष जी हमें कह रहे हैं। well, इसी के साथ बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज़।